So these are the logical operators. Let me zoom in. About this if and else condition, I'll tell you what exactly it is. It is a conditional execution system. You'll get to know about it in next slide. I'll be explaining it to you from PPT, and then I'll be back with Google Colab. So we assigned a value x equals to 5 and y is equal to 3. Now in this if statement, we provided it with a condition if x equals to 5 or y equals to 3. See, now x equals to 5, we know it's true, right? And if y equals to 3, we know that is true as well. So this is the statement that's going to be executed, and we're going to get the output to be 8. See, x plus y is equal to 8. Now if any of the situation, if any of the condition is not going to be true, still we're going to get this as the output only, okay? But if both of these conditions are wrong, like x equals to 1 and y equals to 2, see, this is the one that's been executed, okay? Let's just take 2 minutes break, okay? You can ask your doubts in the chat box. If anyone have doubt, please ask in the chat box. Ankur? Yes. Yeah, explain this logical operators example which Astha did last time, because like many of the students are facing difficulty in this. It's just coming. Wait a minute. She will explain. Just wait a minute. Okay. Okay, so let's begin, okay? About this logical operators example, I'll explain it to you after explaining you conditional execution, because you might be facing problem because of the fact that you have not been introduced with conditional execution, okay? Let's move on to PPT and then I'll explain it to you again. Yeah, this one is, I guess, clear. This and this. I'll be explaining it to you again after explaining you what exactly is conditional execution, okay? So in order to write useful programs, we almost always need the ability to check conditions and change the behavior of program accordingly. So what exactly we do when we're talking about conditional execution is control whether or not the core will execute an instruction. Okay, you must have heard about if-else statement. Okay, कि if this is true, then print this. अगर ये true नहीं है, then दूसरी statement ले आते हैं हम लोग. Hope you're getting it. Okay. सो लेट मी मेक इट मोर क्लियर कि अगर आपने कोई भी एक कंडीशन दिया कि आपको कुछ ऐसा सिचुएशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये चाहिए मेरे आउटपुट में, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मुझे ये चाहिए आउटपुट में, ठीक है? जैसा कि हम लोगों ने उधर एग्जांपल में किया भी था, जो इफ के अंदर वाला जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम हमें कंडीशन देते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू है
तो वो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम प्रोसीड करेंगे एंड प्रिंट करेंगे जो लिखा हुआ है। और अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन जो है हमने इफ के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर दी है, वो ट्रू नहीं है, तो या तो वो प्रोग्राम या तो वो इफ स्टेटमेंट वही टर्मिनेट हो जाएगी, वरना अगर हम लोगों ने एल्स लिखा हुआ है कि अगर वो नहीं है तो उसके अलावा हमें क्या प्रिंट करना है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है, लुक एट दिस। ये हमारा इफ के अंदर का जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम लोगों ने कंडीशन दिया इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ये सिचुएशन जो है, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है हमारे पास में, तो वी गोना प्रिंट जो हम लोगों ने इफ के अंदर स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड वी गोना एंड दैट इफ कंडीशन। लेकिन अगर वो फॉल्स है तो वो डायरेक्टली एंड हो जाएगा बिना प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने इफ x इज ग्रेटर देन 0 है लिया है, ये करने से पहले हम लोगों को पहले x को डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। हमने x का वैल्यू दे दिया, x इज इक्वल टू 2 दे दिया, ठीक है ना। 2 इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, सो वो इफ में जाएगा, वो स्टेटमेंट देखेगा x इज ग्रेटर देन 0, वो देखेगा x की वैल्यू 2 है, ओके, सो 2 इज ग्रेटर देन 0, इट्स गोना प्रिंट x इज पॉजिटिव। बट अगर हम वैल्यू लेते हैं कि x is equal to, okay, there's a space between these two programs, okay, make it clear। और अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -2, so basically x is not greater than -2, 0, sorry, -2 is not greater than 0, तो फिर ये जो स्टेटमेंट है हमारा print x is positive, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सिमिलरली हम इस पे जाते हैं, अगर हम x is equal to 2 लेते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो डायरेक्टली एंड हो जाएगा, है ना। और अगर हम x is equal to -2 लेते हैं which is less than 0, if x is less than 0, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है प्रिंट के अंदर पास वाला, सॉरी, प्रिंट के अंदर पास वाला जो है वो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज ये प्रिंट करेगा पास, एंड देन वो इफ कंडीशन जो है, इफ स्टेटमेंट जो है वो एंड होगा। इफ का कंसेप्ट समझ आया तो फिर मैं वो लॉजिकल ऑपरेशन वाला, एक्सप्रेशन वाला जो एग्जांपल है वो मैं समझाऊंगी। अगर नहीं आया then I can explain it again as well. I hope it's clear. So about, let's do this as well, okay? Now indentation versus braces, ठीक है। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो सी प्रोग्रामिंग है वहां पे ब्रेसेस आते हैं, मतलब जब आप सी में इफ कंडीशन लिखते हो, इफ स्टेटमेंट लिखते हो, उसके अंदर कंडीशन लिखते हो, तो वो स्टार्ट करने के लिए ये बिगिन विद द ब्रेसेस, एंड फिर इस इफ के अंदर की सारी जो स्टेटमेंट्स आपको रन करानी है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर इफ के अंदर वाली कंडीशन ट्रू है, तो जो स्टेटमेंट्स आपको रन करानी है वो ब्रेसेस के बाद लिखोगे एंड आप क्लोज करोगे उसको, मे बी लेट इट बी 5 4 एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यू गोना एग्जीक्यूट। बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। बेसिकली पाइथन में आपने देखा होगा, कंपेयरिंग इट विद सी, दोज हु हैव स्टडीड सी, तो there are no semicolons after every statement, there are no braces to start a particular function, or you can say to start a particular condition, okay, it's very simple। बल्कि यहाँ पे पाइथन के अंदर जो है वो इंडेंटेशंस होते हैं, और इंडेंटेशंस क्या होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि यहाँ पे इफ लिखा, x ग्रेटर देन 0 लिखा, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्पेस दिया है, ठीक है। तो ये स्पेस क्या बताता है कि हम इफ के अंदर जा रहे हैं, इफ कंडीशन जो है उसको चेक कर लिया है, एंड देन वी आर एंटरिंग इनटू दीस स्टेटमेंट्स, एंड देन वी आर चेकिंग, और यू कैन से वी आर एग्जीक्यूटिंग दीस प्रिंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर ये x ग्रेटर देन 0 होगा तो अंदर जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा, दैट इज अ क्लियर थिंग जो मैंने अभी आपको समझा दी है। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि आपको इसके अंदर कब जाना है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इफ एग्जीक्यूट होने के बाद ही हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। होप इट्स क्लियर। अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा उसको इफ वाला स्टेटमेंट को बता के फिर इंडेंटेशन बताऊं। Please guys, if you don't understand, please ask again, because this is very important concept. We can explain it again. If you want to repeat this concept, we can repeat, just write in the chat box. Repeat indentations for them once again. Okay.
जस्ट अ मिनट. सो बेसिकली जब हम लोगों ने एक इफ कंडीशन जो है उसको शुरू किया, राइट, यहाँ पे हम लोगों ने इफ x इज ग्रेटर देन 0 कॉलन लगा के एंड देन वी हैव रिटन दिस प्रिंट स्टेटमेंट. ठीक है, अगर ये हमारा इफ वाला स्टेटमेंट जो है इसके अंदर का कंडीशन ट्रू होगा सिर्फ तभी प्रिंट वाले पे जाएगा, है ना, वरना ये सीधा एंड हो रहा है, वरना ये सीधा डायरेक्टली एंड हो रहा है. तो बेसिकली ये है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट जो हमारे पास में आ रहा है वो इफ के अंदर है, लाइक इफ के अंदर का प्रोग्राम है, वो इफ के अंदर का कोड है कि इफ अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये इस कोड में एंटर करेगा, वरना ये बाहर से ही चला जाएगा. Are you getting it? So basically ये बताने के लिए कि this statement is basically a part of if statement only. This statement is part of if statement, और अगर ये if statement के अंदर वाला condition true रहता है तो ही ये statement execute होगा. तो ये indentation is basically spaces. We have provided some spaces over here, right? That is basically indentation. ये बताने के लिए कि ये जो statement है वो if के अंदर का statement है. ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो इफ के अंदर का स्टेटमेंट है. अगर इफ का ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये प्रिंट स्टेटमेंट की तरफ जाएगा एंड उसको प्रिंट करेगा जो उसके अंदर हम लोगों ने इनपुट दिया है वो, और एल्स इट्स गोना जस्ट गो स्ट्रेट वे एंड एंड इट. ओके, ये इंडेंटेशन है. एंड बेसिकली दैट वाज अ कंपैरिजन बिटवीन इंडेंटेशन एंड ब्रेसेस. जिन लोगों ने अभी तक सीन नहीं पढ़ा है वो लोग वो ब्रेसेस वाले उस पर ध्यान मत दो. यू गाइज विल बी कंफ्यूज. जिन्होंने सी पढ़ा है दे मस्ट बी नोइंग कि हम जब एक इफ स्टेटमेंट शुरू करते हैं तो हम पहले ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं एंड देन इफ के अंदर का जो कंटेंट है वो लिखते हैं, अंदर का कोड लिखते हैं एंड देन वी क्लोज इट. सो जब अपने कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तो हमको पता लग जाता है कि ओके हम अब इफ स्टेटमेंट के अंदर घुस चुके हैं, उसको कंप्लीट करके वी गोना एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर पोर्शन एंड देन वी गोना कम आउट. वैसे ही पता लगाने के लिए कि ओके ये कोड जो है, ये जो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो इसके अंदर का स्टेटमेंट है और ये सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू होगा, सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा. दैट इज बेसिकली इंडेंटेशन. these spaces we are providing, we are telling them कि ये जो हमारा ये वाला जो कोड का पोर्शन है ये इफ के अंदर का पोर्शन है और सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा इफ का कंडीशन ट्रू रहेगा. Is it clear now? Hello? रिप्लाई करो ताकि मुझे पता लगे मुझे आगे बढ़ना है या फिर वापस बताना है इसको. It's clear to them. You Yes, can proceed. You can continue. Okay. तो इंडेंटेशन एंड ब्रेसेस क्लियर हो गया है. अब ये है बेसिक प्रोग्राम फॉर इवन ऑड. ओके, तो अगर अपने पास में ये एक है कि इफ का ये इफ स्टेटमेंट है, दिस इज द कंडीशन. इफ x रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0, ये हमें क्या बता रहा है कि x रिमाइंडर 2 मतलब कि एक पर्टिकुलर अपने पास में वेरिएबल है x, ठीक है, जो हम बेसिकली यूजर से इनपुट ले रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है. उसने कोई भी वैल्यू दिया x का एंड अगर उसका रिमाइंडर जो है 2 के साथ 0 आ रहा है, रिमाइंडर यू नो लाइक वी आर हैविंग 10, ओके, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज गोना गिव अस द रिमाइंडर 0. सो बेसिकली दैट इज एन इवन नंबर. मॉड्यूलस फंक्शन मैंने आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पीछे कि बेसिकली मॉड्यूलस लेते हैं अगर हम किसी दो नंबर्स का, लाइक x मॉड्यूलस विद y, सो बेसिकली दैट इज द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय y. ओके, तो अगर हम किसी नंबर को x को कोई वैल्यू जो हमें मिला है यूजर इनपुट से उसको हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ और हमारा रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आता है, बेसिकली दिस इज इक्वल टू साइन, ठीक है, इक्वल्स टू. ये भी कंडीशनल है कि अगर वो 0 के इक्वल आता है देन यू वांट द पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट इवन, और अगर वो रिमाइंडर उसका 0 के इक्वल नहीं आता व्हेन दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2 देन यू गोना प्रिंट ऑड. Okay, if this statement, this condition is true, we are supposed to print this even, and if this statement above if statement, if condition is not true, you're gonna enter the print area, not else. You're gonna enter in else and you're gonna print odd. This is the basic program for even odd.
Okay, so let's first see this collab. अब मैं आपको ये लॉजिकल वाला समझाने की कोशिश करती हूँ, होपफुली आपको समझ आ जाए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स. हम लोगों ने क्या किया कि लेट इट बी 5 3 ओवर है. ठीक है, हम लोगों ने x एक वेरिएबल लिया, उसका वैल्यू असाइन करा दिया 5 एंड y एक वेरिएबल लिया जिसका वैल्यू हमने असाइन करा दिया है 3. अब हम लोगों ने क्या किया, इफ स्टेटमेंट दिया एंड यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन डाल दिया कि इफ x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 3 then we're going to enter this loop. Sorry, not loop. Then we're going to enter over here. Then we're going to execute this particular area of code that is under if. Okay. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैंने आपको जब लॉजिकल ऑपरेटर्स का टेबल दिखाया था, then you must have seen that there was that or truth table. Okay, when either of the two conditions were true, then our answer would have been true, right? So x equals to 5. So we are checking it if x equals to 5. So yes, x is equal to 5, we have assigned it, or y equals to 3. And y is also equal to 3, we have assigned it earlier, we have assigned it over here. So ये जो है, this is true, x equals to 5 is true, y equals 3 is true. So true or true is going to give us true. So if this statement is true, so we're going to get into over here and we're going to print x plus y. ठीक है, एंड एक चीज ध्यान रखना कि अगर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता तब वो एल्स पे जाता है. ओके, ये नहीं है कि इफ भी होगा और एल्स भी एग्जीक्यूट होगा. लाइक अगर ये वाला सिचुएशन अपना wait a minute, where was, हाँ, अगर हमारा इफ के अंदर वाला कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाता है तब वो पर्टिकुलर कोड जो है वो एल्स के अंदर का स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स इट्स गोना एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट दैट इज अंडर इफ, दैट इज इनसाइड इफ. सो अब हम लोगों ने प्रिंट किया था पहले, लेट्स सी. सो ये ट्रू आया इफ के अंदर. अब हम आए x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 3, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था. ट्रू और ट्रू इज गोना गिव अस ट्रू. So this is the statement that's going to be executed, that is print x plus y. So this is going to be 8. Now अब हम लोगों ने क्या किया कि let's change this to 4. ठीक है, अब हमारे पास में ये पर्टिकुलर कंडीशन है वो तो फॉल्स हो गया, बट स्टिल y इक्वल्स 3 इज ट्रू. सो बेसिकली अभी जो इफ के अंदर का कंडीशन है वो अभी भी ट्रू है. सो अभी भी प्रिंट x प्लस वाई ही एग्जीक्यूट होने वाला है, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, यू कैन सी इट. और अगर हम दोनों चेंज कर देते हैं, दैट वाज ऑलरेडी चेंज्ड. ठीक है, और अगर अब हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवाया एंड देन वी आर गेटिंग दिस वैल्यू. पहले इफ पे आया, चेक किया, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, मतलब इसके अंदर नहीं जाना है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना है. और ये नहीं करना है तो मतलब इसके अलावा एल्स प्रिंट दिस. सो प्रिंट x minus y where our x is 1 and our y is 4. So this is going to give us the result 1 minus 4, that is minus 3. Okay, this is the logical operator example that you were asking about. Okay, I hope it is clear now, right? You can tell me if you have a doubt or else I'm proceeding. Yeah, okay? go ahead. Okay. Go ahead. Now for n in 100. So basically in is a keyword. Okay, n is a keyword. You're gonna learn about it later. I'm not gonna tell you this example right here. Okay, all these things you're gonna learn later in for loop in the next class. Okay, अभी आप लोग सिर्फ कंफ्यूज ही हो गए इससे, so मैं अभी ये वाला एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ यहाँ पर. So अब हमारे पास में आता है if else कंडीशन. ठीक है, तो ये हमारे पास में आता है if -5 प्रिंट yes, else प्रिंट no. इफ एल्स का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. सो यस, ओके. तो बेसिकली इसके लिए मैं आपको एक कोड टेक्स्ट खोल के बताती हूँ. कंडीशन
equals to some value.